हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ NCERT एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्नों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक थ्योरम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं जो बड़ा यूजफुल है। वह थ्योरम है आपके NCERT बुक में 6.7 थ्योरम 6.7। This theorem states that if a perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to its hypotenuse, then the triangle on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। मीन्स कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके राइट वर्टेक्स से उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें से प्रत्येक होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा और खुद अपने आप में सिमिलर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैं फिगर बनाया हूँ एंड गिवन लिखूँगा तो प्रूव लिखूँगा, फिर प्रूव करूँगा। देखिए गिवन ABC is right triangle। ABC is a right triangle which is a right angle at angle B। ठीक है, a perpendicular BD has been drawn from the right vertex to hypotenuse। ठीक है, तो इसको हम राइट करते हैं। गिवन इन राइट ट्रायंगल ABC with angle ABC equal to 90 degree, BD perpendicular AC, given in right triangle ABC with angle ABC, right angle 90 degree, BD perpendicular to AC। ठीक है, you have to prove first ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना है परपेंडिकुलर के दोनों साइड में और दोनों होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ABC, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ABC and also triangle ADB similar to triangle BDC। triangle
A D B similar triangle A B C फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इज triangle B D C BDC similar triangle ABC and third is triangle ADB similar triangle ADB similar triangle BDC। तो दो ट्रेंगल बना है ADB BDC, ये दोनों अलग अलग ABC ट्रेंगल ABC के सिमिलर होगा, फिर ADB और DBC भी आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब लोग हम चलते हैं, बारी बारी से प्रूव करते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से प्रूफ देखें, प्रूफ इन ट्रेंगल ADB and triangle ABC. In triangle ADB and triangle ABC, angle ADB equal triangle, angle ADB equal angle ABC. Angle ADB equal angle ABC because it is right angle 90 degree. As ABC is 90 given and BD perpendicular AC, therefore angle ADB must be right angle 90 degree. Clear? Also angle A equal angle A common. Angle A is common to both triangle ADB and ABC, ठीक है। तो आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया जानते हैं कि when two angles of one triangle equal to two angles of another triangle respectively, the two triangles are similar. Asimilarity. This implies triangle ADB similar triangle ABC by AA similarity. AA similarity, ठीक है। नेक्स्ट that is your part 1 has been proved. Part 1 has been proved हो गया, पहला भाग ये आपका हो गया, ठीक है। एंगल देख रहे हैं ए सिमिलरिटी से एंगल ए, ठीक है।
नेक्स्ट आप सेकेंड करना है सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC एंगल BDC equal angle ABC right angle 90 and angle C equal angle C common. Similarly, as you have seen in part 1, angle BDC right angle because BD perpendicular AC and angle ABC as a right angle given, then BDC and ABC are equal to 90 degree. Angle CC is common in both triangle. Therefore, these two triangles are similar by a similarity. This implies triangle BDC, triangle BDC similar triangle ABC by a similarity. दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया। तो आपका पार्ट 2 प्रूव हो गया। पार्ट 2 प्रूव हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करना है, बड़ा इजी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के मदद से खुद हो जाएगा। देखिए, यू नो पार्ट 2 प्रूव हो गया, पार्ट 1 प्रूव हो गया, पार्ट 3 करना है। नाउ ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC and triangle BDC similar triangle ABC. This implies triangle ADB similar triangle BDC. Part 3 proved. जनरल फैक्ट है, एक्सियम आप पढ़े होंगे कभी। आप जानते हैं व्हेन टू थिंग्स आर सिमिलर इक्वल सेम थिंग दे आर सिमिलर और इक्वल टू ईच अदर। तो हियर टू थिंग्स आर ADB एंड BDC आर सिमिलर टू सेम थिंग ABC दोनों एक ही के सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, उसी एक्सियम से देयर इज ए एक्सियम यू हैव रेड इन क्लास 9 इन बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ऐसा एक्सियम दिया हुआ है, व्हेन टू थिंग्स आर सिमिलर और इक्वल टू समथिंग दे आर सिमिलर और इक्वल टू ईच अदर। ठीक, तो आपका तीनों पार्ट प्रूव हो गया। नाउ वी प्रोसीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.5, राइट। Question number 1.
Question number 1. In question number 1, you have given exercise 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। में स्टेटमेंट है, डिटरमाइन वेदर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन below are sides of right angle triangle. In case of right triangle, find the length of the hypotenuse. इसमें आपको एक से अधिक 4 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन है। उसमें प्रत्येक में ट्रायंगल का 3 साइड्स दिया हुआ है। आप जांच कर बताइए कि ये साइड्स राइट ट्रायंगल का साइड है या नहीं। अगर है तो उसका लेंथ निकालिए। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन हम आपको ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक आपका है, एक को मान लीजिए फर्स्ट साइड है 7 cm, सेकेंड B 24 cm, थर्ड C 25 cm, ये दिया हुआ है। तो आपको जांचना है, टेस्ट एग्जामिन करना है वेदर दी 3 साइड्स आर साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल और नॉट। तो यू कैन डू इट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि इफ इन ए राइट ट्रायंगल a square of one side is equal to the sum of squares of remaining 2 sides, the angle opposite to first is a right angle। तो हम देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू find the sum of squares of a smaller sides, 2 smaller sides। 3 साइड्स में से जो छोटा साइड हो उसमें से 2 छोटे साइड्स का आप सम निकालिए, स्क्वायर का सम निकालिए। तो हम यहाँ देखते हैं 7 and 24 25 आउट ऑफ दिस 3 7 and 24 इज आर स्मॉलर। तो हम स्क्वायर करते हैं, देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576, इतना आएगा। इसको आप ऐड करेंगे, आएगा 625। अब स्क्वायर हम देखते हैं थर्ड साइड का, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड C 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो आप क्या देख रहे हैं, सम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड C। तो दोनों इक्वल हो गया। तो 10 आप यहाँ पर आप लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये आपको
पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कीजिए कि जो थर्ड ये साइड है सिंगल साइड, इसके सामने जो एंगल होगा राइट एंगल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल अपोजिट टू C equal to 90 degree. Hence given sides are sides of right triangle. यहाँ right triangle है, right triangle। तो ये जो साइड है 7, 24, 25, ये राइट ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया। अगर ये इक्वल नहीं आता है A² + B² इज नॉट इक्वल टू C², तो राइट ट्रायंगल का साइड नहीं होता, लेकिन यहाँ इक्वल आ गया तो है। ठीक है, कहता है कि अगर है तो क्या पूछ रहा है, राइट लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गया, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये हो गया सी हो गया हाइपोटेन्यूज 25 cm। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है PQR is a right triangle at P and M is a midpoint on QR such that PM perpendicular QR so that PM square equal to QM into MR. PQR is a right triangle at P and M is a midpoint on QR such that PM perpendicular QR so that PM square is equal to the product of QM and MR। तो हम गिवन एंड टू प्रूव लिख देते हैं, इससे आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 PQR is a right triangle at P। PQR एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल P राइट ट्रायंगल है। कहता है QR पर M एक पॉइंट है सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, PM परपेंडिकुलर QR है। ठीक है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव गिवन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हम गिवन लिख रहे हैं, गिवन इन ट्रायंगल
पी क्यू आर एंगल यू पी आर 90 डिग्री, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर टू प्रूव पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्वेश्चन आपका इतना से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। अभी बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.4 यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड ए थ्योरम 6.7, आप उसका यूज यहाँ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है वहाँ उस पहले उस थ्योरम में हम लिखे थे ABC, अरे हाँ है QPR। ठीक है, BD परपेंडिकुलर के जगह पर PM है, तो आप उसको आप ये केयर कीजिएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे सिमिलर करने पर आपका सोल्यूशन लॉन्ग हो जाएगा। अगर उसका यूज करते हैं तो शॉर्ट बनेगा, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं, प्रूफ देते हैं। इन ट्रायंगल QR PM परपेंडिकुलर टू हाइपो QR, तो क्या होगा आपका जो दो छोटा वाला ट्रायंगल उसमें बताए थे कि आपस में भी सिमिलर होता है, तो दोनों सिमिलर होगा। परपेंडिकुलर के बोथ साइड जो ट्रायंगल होगा वह आपका सिमिलर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल हम लिखेंगे PMQ, ट्रायंगल PMQ सिमिलर ट्रायंगल RMP। ठीक है, PMQ सिमिलर RMP यूजिंग थ्योरम 6.7 का यूज कर। ठीक है, अब हम दिखाना चाहते हैं ये टू प्रूव। इसमें आप देख रहे हैं PQ नहीं है, PR नहीं है, QR नहीं है। जो साइड इसमें आपको दिख रहा है उसी को आप प्रोपोर्शनल कीजिए। देखिए PM यहाँ है तो हम लिखेंगे, तो दोनों सिमिलर हो गया, देयरफॉर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलरिटी में पढ़े हैं, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज PM फर्स्ट टू लेटर फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल और फर्स्ट टू लेटर फ्रॉम सेकेंड ट्रायंगल, तो PM by MR। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं QM है, तो हम अब QM सेलेक्ट करेंगे, तो लास्ट टू लेटर फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल QM by last two letter from second triangle PM। by simple cross multiplication we have PM square equal to QM into MR proved। ठीक है, तो आपको थ्योरम
का कंसेप्ट होना चाहिए बढ़िया से, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ABC right angle at C, prove that AB square is equal to 2AC square। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC is a right angle isosceles right angle right angle at C, right angle at C, prove that AB square is equal to 2AC square। AB square is equal to 2AC square, ये करना है। AB square is equal to 2AC square। क्वेश्चन तो लिख दिए, क्वेश्चन बस रीड भी कर लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करते हैं, गिवन लिखते हैं, टू प्रूव करते हैं, ठीक है। एक ट्रेंगल है ABC, ट्रेंगल ABC, राइट एंगल एट C, इसका एंगल C राइट एंगल है, यहाँ A हो गया, ये D हो गया, ठीक। तो राइट एंगल ट्रेंगल ABC में एंगल C राइट एंगल है, आइसोसेल राइट ट्रेंगल है, तो गिवन हम लिखेंगे, गिवन इन ट्रेंगल ABC एंगल C 90 राइट, AC is equal to BC, AC इक्वल टू BC है, आइसोसेल है, ये दोनों साइड इक्वल होगा। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूफ बहुत इजी है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, आप ध्यान लगाइएगा जैसे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम अब प्रूफ करते हैं वेरी इजी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Hypotenuse, a square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides। तो ए बी हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर इक्वल हो गया सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के।
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी है जी। AC स्क्वायर गिवन दैट AC equal to BC, so we can replace BC by AC, BC by AC, since AC इक्वल टू BC, AC BC इक्वल है तो हम BC को AC से रिप्लेस कर दिए ना बाय सिंपल एडिशन ऑफ अलजेब्रा। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रूव हो गया। देखिए कितना ईजी, इतना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट कन्वर्स टू क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको उलट दीजिए, पूरा उल्टा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। इसको आप रिवर्स चल जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बन जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ रहे हैं आपको, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 थोड़ा लॉन्ग है, टाइम बहुत हो गया है, देखते हैं जल्दी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम डिक्टेट कर देते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. वेरी इजी है, तो आप समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बना डाले हैं। पहले गिवन यहाँ लिखते हैं, गिवन क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 ये सब इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्वाड्रेटर ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस है आपका, इज ए रोम्बस। कहता है कि इसमें जो साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम टू प्रूव लिख रहे हैं, क्या प्रूव करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड। तो साइड पर हो गया ABC CDD है, तो हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, चारों साइड के सम का ABBC CD स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, आप
जानते हैं। प्रूफ में चलिए। Since diagonals bisect each other at right angle, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। ACBD बाइसेक्ट करेगा ओ पर। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज OA OC इक्वल हाफ AC स्क्वायर OB स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर इक्वल हाफ BD स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं लिख रहे। OA इक्वल टू OC इक्वल हाफ AC, OA इक्वल OC इक्वल हाफ AC, OB इक्वल OD इक्वल हाफ BD। जल्दी जल्दी में गड़बड़ होता है थोड़ा। ठीक है, OA इक्वल OC हाफ AC, OB इक्वल OD इक्वल हाफ BD। ठीक है, अब ये हो गया। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अब तो ईच एंगल 90 90 हो जाएगा। 90 90 90 90 90 सब होगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल AOB है। AOB इसमें राइट एंगल हुआ, ये भी हाइपोटेन्यूज है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। अब OA इक्वल टू हाफ AC, OB इक्वल टू हाफ BD, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ठीक है, इसको आप 1 ले लीजिए। ठीक है, सिमिलरली आपको ये चारों ट्रेंगल में इसी तरह का रिलेशन आएगा अगर आप बढ़िएगा तो। इन ट्रेंगल BOC, इन ट्रेंगल BOC BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ठीक, आप इस ट्रेंगल को BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OAC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। OC इक्वल टू हाफ AC, OD इक्वल टू हाफ BD, ये सब तो आपको इसी तरह से आएगा एग्जैक्टली। तो फिर थर्ड ट्रेंगल इसमें हम देखते हैं ट्रेंगल COD। इसमें आपको आएगा CD स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। एंड फाइनली इन ट्रेंगल AOD भी आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल हाफ
AC square plus 1/4 BD square. नंबर डाल दिए 1 2 3 4। आप इसी तरह से सिमिलरली आपको मिल जाएगा। देखिए COD है तो CD स्क्वायर होगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OC स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दीजिएगा हाफ AC से, OD स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिएगा हाफ BD से, तो फिर आपको सीन इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग 4 इक्वेशंस हो गया। अब ऐड कर देते हैं सबको। एडिंग 1 2 3 एंड 4। इस 4 को हम 4 को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। अब क्या देखते हैं लेफ्ट का लेफ्ट में, लेफ्ट साइड AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। इस सब में कितना बार ऐड कीजिएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 AC स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट का हो गया। फिर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर आपका ये मिलेगा। देखिए राइट साइड में ये सब लिखे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, 4 × 1/4 AC स्क्वायर। AC स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर 1/4 AC 4 टाइम्स है, तो 4 × 4 1/4 AC स्क्वायर। फिर इसका भी हो जाएगा BD 1 2 3 4 टाइम्स है एडेड, तो 4 × 1/4 BD स्क्वायर। ठीक है, 4 कैंसिल हो गया आपका, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका आज क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, तो परहैप्स आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।